بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز۔ پاک فوج نے فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملکی سطح پر تیار کردہ 750 کلومیٹر رینج کے حامل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ میزائل جدید نیویگیشنل آلات سے لیس ہے۔ میزائل دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمینی سطح کے ساتھ پرواز کی خصوصیات کا حامل ہے۔ ان خصوصیات کے باعث یہ میزائل اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف جنرل سٹاف پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف کی جانب سے فتح 4 کے کامیاب تربیتی تجربے پر شریک دستوں، سائنسدانوں، انجینئرز کو مبارکباد دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اسپیشل ٹی وی کا ایک اعزاز۔ اسپیشل ٹی وی نے اپنے ناظرین کو امریکی صدر کے غزہ پلان سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ معاہدے میں سابق وزیر اعظم ٹومی بلیئر کی شمولیت سے بھی اسپیشل ٹی وی کے صارفین آگاہ تھے۔ اسپیشل ٹی وی نے کل ہی بتا دیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام، پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسپیشل ٹی وی نے حماس کے جنگ نہ کرنے والوں کے لیے عام معافی کی شک سے بھی ناظرین کو آگاہ کر دیا تھا۔ آئیے ایک بار پھر عالمی معلومات کا یہ حصہ دیکھتے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے بارے میں جو ان کا پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کیا ہے اور ایکچولی یہ پلان کس نے تیار کیا ہے۔ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اپنا جو اس وقت میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہوا ہے، نہیں، ان میٹنگز میں یہ پلان پیش ہوا ہے۔ پلان ایکچولی بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایک رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی کشنر، انہوں نے، اور ان نے ساتھ تعلق قائم کیا برٹن کے جو سابق پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر، انہوں نے، ان کی جو این جی او ہے، انہوں نے کشنر کے ساتھ مل کے، جو امبیسڈر ہیں انگلینڈ میں، ان کے ساتھ مل کے ایک پلان تیار کیا ہے، اور اس پلان پر جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا مذاکرات ہوئے پھر عرب ملکوں کے ساتھ، پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی، اگرچہ خبریں سامنے نہیں آئیں، امکان ہے کہ اسی پلان پر بات ہوئی ہے۔ اور میرا یہ اندازہ ہے کہ جو ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان سعودی ولی جو ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، جس میں مطلب ہمارا جو میڈیا گارا سارا کچھ شامل ہے، تو ہوگا سارا کچھ، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں بہت کچھ شامل ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایکچولی پاکستان کی انٹری سعودی عرب کے ذریعے سے ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ غزہ میں، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے، اب جو بعد میں پلان ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ملٹی لیٹرل کوئی وہاں پہ فوج آئے، لیکن اب یہ کہ فوج جو ہے نا وہاں پہ عالمی ممالک کی نہیں آئے گی، کیونکہ یورپی ملکوں نے منع کر دیا ہے، اور یورپی ملک ویسے بھی اپنی زیادہ جنگ و جدل میں الجھے میں، اپنی جو ان کا مغرب میں ایک نیا بارڈر کھلا ہوا ہے، نیا سے مطلب 2022 سے کھلا ہوا ہے یوکرین کا، وہ اس بارڈر میں الجھے میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اسی طرف رہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں بتایا کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، ایک ایسا معاہدہ ہے جو اب آخری مرحلے میں داخل ہو گیا کہ مے بی کہ یہ معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں اس سے امن کا ایک پورا دروازہ کھلے گا، اور ہم ایک ایسے امن کی فضا میں، امن کے اس میں داخل ہو جائیں گے دنیا میں، جہاں مطلب اسلامی ممالک کی اس کو ہر لحاظ سے دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے یہ والی جو کوششیں اب ہو رہی ہیں، یہ سب سے اہم ہے، یعنی اہم ترین ہے، اور اس میں ہر کوئی مذاکرات کے میز پر آیا ہے، یعنی ڈائریکٹلی اسلامی ممالک آئے ہیں، اور انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اسرائیل آیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وزیر اعظم جو ان کے ساتھ ایک ملاقات تو ہو چکی ہوئی ہے، اور باقی ملاقات جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک ہو چکی ہوگی، وہ ان تجاویز پہ ہونی ہے جو اب تک منظور کی جا چکی ہیں۔ پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ 21 نکاتی فارمولہ جو ایکسیس کو دیا گیا تھا، لیکن ایکچولی اپنا 21 نکاتی بھی بنیادی طور پر 4-5 نکات ہیں، انہی کو بڑھا بڑھو کے جو ہے نا وہ آپ 21 بنا لیں، لیکن بنیادی طور پر 4-5 نکات ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک کو بڑا اپریشیٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا، اور پھر کہا کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ جس میں سارے ممالک میرے ساتھ شامل ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حماس ان کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی حماس کے ساتھ وہ انڈائریکٹلی رابطے میں، اور عرب دنیا جو ہے نا وہ اس کی دنیا بھر میں بڑی عزت ہے، اور عرب جو دنیا اس کی عزت میرے بھی دل میں بہت ہے۔ تو ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہوئے آگے چل کے کہتے ہیں کہ عرب دنیا جو ہے وہ امن چاہتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اسرائیل بھی امن چاہتا ہے اور نیتن یاہو بھی امن چاہتا ہے۔ یہ تو مطلب ایک جوک ہو گیا ہے کہ اسرائیل بھی امن چاہتا ہے اور نیتن بھی امن چاہتا ہے، انہوں نے تو لفظ کہ بی امن چاہتا ہے، تو کتنا امن چاہتا ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ امن نہیں چاہتا تو لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر ہیں دوسرے ملکوں کے۔ اور ابھی ایک ویڈیو تو نہیں، مطلب جب تصویریں جو ہے نا وہ لندن اور مختلف ملکوں کے سڑکوں پہ لگائی گئیں تو لوگ وہاں پہ جو گزر رہے تھے وہ رو پڑے،
गुजरने वाले लोग जो है ना वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो वहाँ के गज़ा में बच्चों की हालत को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये तो मतलब उनकी बर्दाश्त से बाहर था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि मेरा मकसद जो है वो जंग को ख़त्म कराना है, और अगर हम ये काम कर लेते हैं तो ये इसराइल और मशरिक़ वस्ता दोनों के लिए बड़ा अच्छा दिन होगा, और मशरिक़ वस्ता के लिए ये हकीकी अमन का पहला मौका है। यानी अब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ये टॉप क्लास से मौका, और इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो वो पीर के रोज़ जो है यानी जो मैंने बताया कि आज शाम को इस अमन मिशन पे बात करेंगे, और वो भी बकौल उनके अमन मिशन में शामिल हैं, और जो कुछ अब तक मुज़ाकरात हुए हैं वो उनकी उसमें मदद से ही हुए हैं, मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी ज़रिए से राब्ते में। और अरब ममालिक जो वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों से जो इसमें रुकावटें हैं वो मतन में तरमीम की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि एक नुक्ता है कि मुआहदे के होते ही हमास सारे के सारे वापस कर देगा और असलाह जो है वो उसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब हमास का ये मानना है कि असलाह को कैसे बर्बाद किया जाएगा और हमास को कैसे वहाँ से बेदखल किया जाएगा। हाँ, इसमें एक शिक ये भी रखी गई है कि हमास के वो लोग जो हथियारों को फेंक दें और वो ये कहें कि हम मतलब पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं जैसे दुनिया भर में होता है, तो उनके लिए आम माफ़ी की एक शिक रखी गई है। लेकिन इस शिक की जो जुज़ियात हैं अभी उस पर मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है ना, मतलब मुल्कों के इस्लामी ब्लॉक और इजराइली ब्लॉक में कुछ थोड़ा सा अख्तिलाफ़ राय है। पाकपतन में सनक्रो पेस्टिसाइड्स ग्रुप के ज़रिए तमाम फार्मर फील्ड डे का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के किसानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में किसानों को धान की बेहतर पैदावार के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। रीजनल मैनेजर मिर्जा मुख्तार अहमद ने कहा, सन क्रॉप गुज़िश्ता 25 साल से किसानों की रहनुमाई में पेश है। टोंसा शरीफ में रेस्क्यू 1112 की जानिब से अपने रेस्क्यूअर्स की फिटनेस की जांच के लिए फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। टोंसा शरीफ में रेस्क्यू 1122 ने अपने रेस्क्यूअर्स की फिटनेस की जांच करने के लिए फिजिकल टेस्ट का इनेकाद किया। ये टेस्ट रेस्क्यूअर्स की जिस्मानी फिटनेस और पेशावराना तैयारी को यकीनी बनाता है, क्योंकि एक सेहतमंद और फाल रेस्क्यूअर ही इमरजेंसी हालात में मरीजों को बेहतर अंदाज में बचा सकता है। इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इमरान भुट्टा की क़यादत में ये टेस्ट मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रेस्क्यूअर्स की क़ुव्वत बर्दाश्त, चुस्ती और ताकत का जायजा लिया गया। टेस्ट के दौरान मुख्तलिफ जिस्मानी मशकों के मराहिल भी शामिल थे, जो अमली हालात के मुताबिक डिज़ाइन किए गए थे। इससे न सिर्फ रेस्क्यूअर्स की फिजिकल फिटनेस बल्कि इनकी टीम वर्क की सलाहियत भी बेहतर होती है। इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इमरान भुट्टा का कहना था कि हमारी कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि हम कितने फिट और तैयार हैं। ये टेस्ट हमारे रेस्क्यूअर्स को हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार करता है। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, टोंसा शरीफ। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन स्क्वाड ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 728 तजावुज़ात का सामान जब्त और 2373 गैर कानूनी बैनर्स फ्लैक्सिस हटा दिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा, ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सख्ती से अमल किया जा रहा है। अवामी मुकामात पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चौक सरवर शहीद मकबूल टेक्सटाइल्स मिल्स के वर्कर्स को गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मजदूरों ने एहतजाज करते हुए मिल के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खालिद अली से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। नहीं मिली और 8 महीने के जो बकाया टाइम जात हैं वो भी इनको नहीं मिली। जहाँ तक बात करता चलूँ, ये होटल मालकान ने वो भी बंद करवा दिए। इस वक्त ये मिल मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि भाई बताएं ये क्या इशू है मिल मकबूल। भाई ये आपके सामने यकीन करें कि भाई हमें समझ नहीं आ रही है, भाई जो लोग वर्कर की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ पर हैं? वो कहाँ गए? वो मरियम नवाज़ के राशन कार्ड जो वर्करों को मिलने से सबसे पहले उसने कहा था अव्वलीन तरजीह है मेरी वो टेक्सटाइल का महकमा, तो वो कहाँ गए? हमें तो नहीं मिले। हालांकि हमारे यहाँ छोटे छोटे यूनिट हैं, छोटे छोटे, इनकी हैसियत नहीं है मालिकों की इतनी, उन्होंने भी अपने वर्करों को राशन कार्ड दिए हुए हैं। और एक इतना बड़ा ग्रुप है, मकबूल टेक्सटाइल मिल का एक ग्रुप है, नस्ल दर नस्ल इसे तीसरी नस्ल चला रही है। अगर इसे बर्बाद ही करना है तो भाई एक ही दिन में कर दो। इन वर्करों बेचारों का क्या कसूर है जिनको सुबह शाम तो लोगों ने लाइन पे लगाया हुआ है? ऊपर से धमकियां देते हो। एक ही होटल था फैक्ट्री में, उसका खाना खाने के काबिल नहीं है,
ऊपर से उसे बंद करवा दिया रात का। फिर कहते हैं पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे। भाई समझ नहीं आ रही भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। ना कोई ग्रेजुएटी है, ना कोई बोनस है, ना कोई सर्विस है। वो बाकायदा जो सैलरी है हमारी 32,000 के हिसाब से मिल रही है। मैं तो हैरान हूँ। वो सोशल मीडिया खोलो ना तो फेसबुक पे वो आ जाते हैं जी फैसलाबाद वाले बाबा लतीफ़ अंसारी साहब। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों से, वो सिर्फ फैसलाबाद तक ही महमूद है, बिल्कुल सिर्फ फैसलाबाद तक उनकी जो कम्युनिटी है वो महदूद है, वो आगे नहीं आ रहे। ओ अल्लाह के बंदो भाई ये भी फैक्ट्री है, ये भी वर्कर हैं, यहाँ 1200 वर्कर जलीलो खुआर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। SHO साहब आते हैं सीधा दफ्तर में, GM साहब हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही बेकार है। ऊपर से हमें सिक्योरिटी गार्ड बंदूकें दिखा रहे हैं, डंडे दिखा रहे हैं। भाई पागल हैं हम लोग, घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। अब इसके ज़्यादा आपसे क्या बताएं भला। जी, जिस तरह आप लोगों ने मिल फैक्ट्री वालों की बात सुनी, इनका तो ये कहना था कि मिल वाली की तरफ से हमें प्रेशर भी दिया जा रहा है। दूसरी जानब में आज 10 दिन हो गए हमें ना भी खाना मिलता है, ना ही हमें कोई चीज़ इधर से मिलती है। दूसरी जानब बात करता चलूँ तो इधर ना बिजली का जो पानी वगैरह हैं, पक्खे वगैरह हैं, वो भी बंद कर दिए हैं। ये अपने सफ़र रोड के ऊपर ही गुजारते हैं सारा दिन, या फैक्ट्री के गेट के सामने धरना देकर ये बैठे रहते हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने तहसील ननकाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ट्रामा सेंटर, जिम्नाजियम, बुनियादी मराकिज़ सेहत, सहूलत बाजार समेत तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हदायत दी कि तमाम मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ, अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमों की कारकर्दगी, ऑनलाइन एंट्रीज का मुआयना भी किया और बताया कि 52 टीमें तेज़ी और शफाफियत से डाटा इकट्ठा कर रही हैं, जिसे 1 माह में हुकूमत को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस 8 कौंसल हाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां अवामी शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर कार्रवाई की हदायत जारी की गई। RPO ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। दौरे के दौरान सर्कल अफसरान SHOs के साथ मीटिंग में क्राइम कंट्रोल, FIR के बरवक्त अंदराज, मंशियात, नाजायज असला, दीगर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन की हदायत भी जारी की गई। RPO ने पुलिस दफातर ज़ेर तमीर मनसूबों का मुआयना, मुकामी ताजरों, वकला, मीडिया से भी मुलाकात की। लाहौर में मेहू अस्पताल से अगवा होने वाली 2 रोज़ा बच्ची को पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। खतून मुलजिमा राबिया गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा की हदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की निगरानी में तश्कील दी गई टीम ने CCTV, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई की। मुलजिमा ने दूसरी शादी के बाद लोगों को दिखाने के लिए बच्ची को अगवा किया। वालिदैन ने बच्ची को बाजियाबी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DIG ने पुलिस टीम के लिए तरीफी इसनाद का भी ऐलान किया। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,342 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी, 37,789 चलान के जरिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। धुआं छोड़ने वाली 703 गाड़ियों को चलान किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने, रिकवरी के मौसर इकदाम की हदायत की है। 127 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में शहरियों को तरबियत भी फराहम की जा रही है। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कैंप जेल में कैदियों के लिए पहले ओपन जिम का इफ्तिताह कर दिया। जिम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 4 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया। वजीर खेल ने कैदियों को दी गई सहूलतों, टेक्निकल कोर्सेज, फिटनेस सरगर्मियों का भी जायजा लिया। जेल इंतजामिया को मजीद बेहतरी की हदायत दी। फैसल अयूब का कहना था खेल और फिटनेस सहूलियात कैदियों को जहनी जिस्मानी बहाली में मददगार साबित होंगी और हमें इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से नफरत करनी चाहिए। हैदराबाद में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से गोल्ड बिल्डिंग के सामने सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया, जिसमें मर्द और खवातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने, सिंध हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जुही की सूरत में दायरा कार वसी करने का ऐलान किया। मीरपुर मथेलो में सूबाई मोहतसिब आला सिंध की हदायत पर रीजनल डायरेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें हाजिर सर्विस रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन, तनख्वाहों, GP फंड्स, दीगर मसाइल से मुतल्लिक शिकायत पेश की। रीजनल डायरेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम को शिकायत फौरी हल करने की हदायत देते हुए मौके पर ही मुतअद्दिद मसाइल हल कर दिए। उन्होंने कहा कि मोहतसिब आला का इदारा बिला मुआवजा अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहा है।
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।